فرمائیے ذکر درود پاک سے۔ پھر بھی بآواز بلند صلوات پڑھیے۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ الذی ذکرہ شرفہ للذاکرین وشکرہ فوز للشاکرین واطاعتہ نجات للمطیعین۔ الصلاۃ والسلام وتحیۃ الکرام علی اشرف النبیین والخاتم المرسلین، سیدنا و مولانا و حبیبنا و طبیب قلوبنا ابوالقاسم محمد۔ نادی علی مظہر العجائب، تجد ہو نلقا فی النوائب، کل ہم و غم سینجلی بے علی مل کے بآواز بلند صلوات پڑھیے۔ دعا ہے پروردگار عالم آپ تمام مومنین کا یہاں نہ اپنی بارگاہ مقدس میں قبول و منظور فرمائے۔ مالک بانیان مجالس عشرہ محرم الحرام جناب سجاد صاحب، ان کے عزیزار رفقا، پورے خاندان کی یہ نوکری اپنی بارگاہ مقدس میں عبادت میں شمار فرما۔ میرا مالک تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا، ان کا یہ ذکر کروانا، یہ صفِ عذاب بچھانا، اس پر خطر دور میں اتنی ساری محنتیں کرنا ذکر مظلوم کربلا کے لیے، میرا مالک اپنے بارگاہ میں عبادت میں شمار فرما۔ میرا مالک جتنے مومن آئے بیٹھے ہیں ان میں سے کوئی خالی دامن واپس نہ جائے، کوئی بے روزگار ہے تو روزگار عطا فرما۔ میرا مالک کوئی بیمار ہے تو شفا عطا فرما، کوئی پریشان ہے تو صدقہ اس ذکر کا پریشانی دور فرما۔ سب دعاؤں کی ایک دعا، جس بندے کے دل میں جتنی تڑپ، جتنی حسرت، جتنی ضرورت ہے، بندہ اتنی حسرت کے ساتھ آمین ضرور کہے۔ میرا مالک ضرورت زمانہ، حجت دوراں، امام ولی العصر کا جلد از جلد ظہور فرما۔ دعاؤں کی مقبولیت کے لیے صلوات ایک پڑھیے مگر مل کے بآواز اللہم۔ سب سے پہلے شکر گزار ہوں بانیان مجالس عشرہ محرم الحرام کا کہ جنہوں نے مجھ حقیر کو یہ موقع فراہم کیا کہ آپ مومنین کی بارگاہ میں حاضر ہو کے اس ممبر کی وسادت سے ان آل محمد سے خیرات مانگ سکوں کہ جن آل محمد کی خیرات نہ ہو تو نبیوں کو منصب نبوت نہیں ملتا۔ یعنی ان آل محمد سے خیرات مانگنا چاہتا ہوں جو خیرات دیتے ہی اس انداز سے ہیں کہ اگر ان کے دروازے پہ بے داد آ جائے اسے مقداد بنا دیتے ہیں، بے ذر آ جائے اسے ابو ذر بنا دیتے ہیں، اور اگر فارس کا کوئی غلام ان کی چوکھٹ پہ جھک جائے تو اسے اہل بیت کا فرد بنا لیتے ہیں۔ اپنی نبوت و امامت کا صدقہ بننے والے آدم کے سجدے کے منکر عبادت گزار کو اپنی دربار سے روندہ درگاہ کر کے شیطان بنا دیتے ہیں، اپنی چوکھٹ پہ ادب کے ساتھ جھک جانے والے کو سلمان بنا لیتے ہیں۔ اور اگر حبش سے آیا ہوا کوئی معمولی غلام ان کے در دولت پہ خلوص نیت کے ساتھ جھک جائے تو پھر اسے اتنا نوازتے ہیں، اتنا نوازتے ہیں، اتنا نوازتے ہیں کہ بلال اس قابل ہو جاتا ہے کہ سورج کی طرح بے کھینچ کے وقت کی نبضیں روک لیتا ہے۔ جی بڑی مہربانی، مالک آپ کو سلامت رکھیں۔ جتنے بندے باہر کھڑے ہیں ان سے گزارش یہ ہے کہ ذکر مظلوم کربلا شروع ہو چکا ہے، مہربانی فرما کر صف امام حسین پہ تشریف لے آئیے۔ میں آج کی نوکری اپنے زمانے کے امام کی بارگاہ میں پیش کرنے لگا ہوں، ٹھیک ہے جی؟ بڑی مہربانی۔ سکون آل نبی کا دیار قائم ہے۔ نہیں، میں سمجھتا ہوں کہ اگر آپ یہ سوچ کے نہیں بول رہے یا یہ سوچ کے ڈھیلی ڈھیلی مجلس سنیں گے، جوش و جذبے خوشی و خضوع سے نہیں سنیں گے کہ ہم تھوڑے ہیں، تو یہ بات آپ کو جچتی نہیں، کیونکہ ذکر اس خاندان کا ہے جہاں 72-9 لاکھ سے جیت جاتے ہیں۔ جی بڑی مہربانی، بڑی مہربانی۔ تھوڑا ہونا عیب کی بات نہیں، میرا بھائی خلوص والا نہ ہونا عیب کی بات ہے۔ تھوڑے بیٹھے ہیں لیکن خلوص والے بیٹھے ہیں۔ سکون آل نبی کا دیار قائم ہے۔ میں مانتے نہیں بندہ ریت امام زمانہ کی ہو، بندے کو پتہ ہو میں نے قیامت کے روز کس امام کے نام کے ساتھ اٹھنا ہے، اور وہ بندہ اگلے مصرے پہ خاموش رہ جائے۔ سکون آل نبی کا دیار قائم ہے۔ جو بندہ انتظار امام زمانہ کرنا عبادت سمجھتا ہے، سکون آل نبی کا دیار قائم ہے۔ چراغ چشم کا بھی انتظار قائم ہے۔ قائم امام کی رہی ہے۔ جی بڑی مہربانی۔
मैंने कहा सकून आले नबी का दयार कायम है, सकून आले नबी का दयार कायम है, चिरागे चश्म का भी इंतजार कायम है, सकून आले नबी का दयार कायम है, चिरागे चश्म का भी इंतजार कायम है, चिरागे चश्म का भी इंतजार कायम है, चिरागे चश्म का भी इंतजार कायम है। जो बंदा देखता है कि सुबह के वक्त सूरज तलू होता है, शाम के वक्त सूरज गरूब होता है, जो बंदा देखता है कि हमारे इर्द गिर्द हवाएं चल रही हैं, जो बंदा देखता है निजाम शमसी कंट्रोल हो रहा है, जो बंदा देखता है कि सूरज तलू भी होता है गरूब भी होता है, जो बंदा देखता है कि चांद तलू भी होता है, फिर चांद आहिस्ता आहिस्ता घटता भी है, फिर आहिस्ता आहिस्ता बढ़ता भी है, जिस बंदे के दीद में ये सारे कायनात का निजाम है, वो बंदा सर उठाए मैं तुझे तेरे इमाम का होना साबित करके देने लगा हूं। सकून आले नबी का दयार कायम है, चिरागे चश्म का भी इंतजार कायम है, और निजाम रब में ये कुव्वत बता रही है हमें जहां में हुज्जत परवरदिगार कायम है। ओहो, रैयत इमाम ज़माना तो बोले, हाथ उठा के यार, बड़ी मेहरबानी जी। जहां में हुज्जत परवरदिगार कायम है। अच्छा, मैं जनाब को थोड़ा नहीं समझ रहा, लेकिन आप खुद को समझ रहे हैं, ठीक है जी। मैं 4 मिसरे और पढ़ता हूँ और शिया मजहब की नस आपके सामने रखता हूँ। बगैर हुज्जत खालिक जमीन नहीं रहती। आहा जी, ताईद का शुक्रिया इख्तियार साहब। बगैर हुज्जत खालिक जमीन नहीं रहती। मैंने इस मिसरे में अपनी शिया कौम का अकीदा पढ़ा है, जिस बंदे को समझ आ जाए वो बंदा मेरे साथ शामिल इबादत हो जाए। बगैर हुज्जत खालिक ज़मीन नहीं रहती, बगैर हुज्जत खालिक ज़मीन नहीं रहती। मेरा इतना तो हक बनते आज 5 दिन की नौकरी के बाद छठे दिन आपसे ये सवाल कर सकूं कि बगैर हुज्जत खालिक ज़मीन नहीं रहती, तो फिर वो कौन है जिसका दवाम बाकी है? आहा जी, बड़ी मेहरबानी। आपके क्या कहने, इस जिक्र के क्या कहने? मालिक जितने बैठे हुए आपको सलामत रखे। मैंने कहा बगैर हुज्जत खालिक जमीन नहीं रहती, हुज्जत खालिक जमीन नहीं रहती, तो फिर वो कौन है जिसका दवाम बाकी है? अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। ये मन से में आया, ये एजाज, ये मौजज़ा, ये मेहरबानी सिर्फ शिया कौम पे हुई। बगैर हुज्जत खालिक जमीन नहीं रहती, तो फिर वो कौन है जिसका दवाम बाकी है? मैं चैलेंज करके जा रहा हूँ, तो फिर वो कौन है जिसका दवाम बाकी है? तुम्हारे सारे वली सो गए हैं कब्रों में। ना 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 ना, बात हकीकत ना हो तो फिर तायद करने का मकसद कोई नहीं। अगर बात हक हो तो फिर यूं बोलना है जैसे बोलने का हक बनता है। बगैर हुज्जत खालिक जमीन नहीं रहती, तो फिर वो कौन है जिसका दवाम बाकी है? तुम्हारे सारे वली सो गए हैं कब्रों में, जहां में सिर्फ हमारा इमाम बाकी है। जिस बंदे को समझ आएगी हाथ उठा के हर बंदा हाथ उठा के। जी बड़ी मेहरबानी जी, बहुत शुक्रिया। आपके क्या कहने जी? हर एक लम्हा मैं आंखें बिछाए रखता हूँ। अच्छा जी, कौन सा बंदा जो इमाम ज़माना के इंतजार में बैठे, एक दफा हाथ बुलंद करे जी। माशाल्लाह माशाल्लाह, सारे इमाम के इंतजार में बैठे हैं। तो फिर अगले मिसरे पे मेरे कलम को दुखी नहीं करना। हर एक लम्हा मैं आंखें बिछाए रखता हूँ, क्यों कि तेरी दीद ही इज्जत नवाज होती है। आहा, जिसे दीद का माने आता था वो बंदा तो बोले ना यार। हर एक लम्हा मैं आंखें बिछाए रखता हूँ कि तेरी दीद ही इज्जत नवाज होती है। यहाँ किबला किस तरफ है जी? किबला इस तरफ। अच्छा जी, अब आपने किबला भी जहन में रखना है और मेरा इशारा भी देखना है। हर एक लम्हा मैं आंखें बिछाए रखता हूँ कि तेरी दीद ही इज्जत नवाजेगा, जल्द ही फातिमा जहरा का पिसर आएगा। आहा, जिस बंदे को नजर आया जनाब, मैं कहता हूँ जी, बंदा रैयत इमाम ज़माना हो, बंदे को सजाद साहब इतना पता होना चाहिए कि मैंने क़यामत में इस इमाम के नाम के साथ उठना है। वो बंदा ना बोले शबीउल हसन काज़मी, मानते ही नहीं इस बात को। दुश्मन हक के मुकद्दर को भी डर आएगा, जल्द ही फातिमा जहरा का पिसर आएगा। लोग कहते हैं कि क्यों काबे में आना है उसे।
नहीं, आपसे किसी ने कभी पूछा नहीं। लोग एतराज करते हैं, बंदे कहते हैं जी इन शियों ने अपने से बात बना रखी है, इनके 12वें इमाम को काबे में आना है, इन्होंने अपने से बात बना रखी है। नहीं मेरा भाई, आ इस लखुडैर के मिंबर पे शबीउल हसन काज़मी अपनी शिया कौम का तर्जुमान बन के तुझे बताने लगा कि शियों ने अपने से बात नहीं बना रखी। सजाद साहब, मैं इसकी दलील दे के जाने लगा हूं, जो बंदा दलील को रद्द कर दे फिर मैं उस बंदे के आगे शक्कर रख लूं। अगर बंदा रद्द न कर सके तो फिर मेरे अकीदे को माने जरूर। दुश्मन हक के मुकद्दर को भी डर आएगा, जल्द ही फातिमा जहरा का पिसर आएगा। और लोग कहते हैं कि क्यों काबे में आना है उसे, अरे वारिसे काबा है सो अपने ही घर आएगा। ओहो रैयत इमाम ज़माना, हाथ उठा के हर बंदा या अली जी, बड़ी मेहरबानी, बहुत शुक्रिया जी, मालिक आपको सलामत रखें। वारिसे काबा है जी, बड़ी मेहरबानी, मालिक आपको सलामत रखें। सो अपने ही घर आएगा। 4 मिसरे और पढ़ूं जी, थोड़ा सा माहौल भी बन जाए। मैं फिर एक बात, एक पैगाम पहुंचाने की कोशिश करूंगा। वो आए, आके खुदाई के भेद को खोले। जी बहुत शुक्रिया, आपके लिए वाह वाह, जिक्र के लिए वाह वाह। भेद कहते हैं राज को, ठीक है जनाब, आपका तो उर्दू सुर नहीं आती है। वो आए, आके खुदाई के भेद को खोले। वो आए, आके खुदाई के भेद को खोले। मेरा वजूद बतन सब इसी खुमार में है। आहा, जिस बंदे को खुमार का तर्जुमा आता है, बड़ी मेहरबानी। वो आए, आके खुदाई के भेद को खोले। मैं अपने 12वें इमाम की बारगाह में गुजारिश कर रहा हूँ, इस्तगासा कर रहा हूँ, मिन्नत कर रहा हूँ, दरखास्त कर रहा हूँ, अपील कर रहा हूँ। जो बंदा मेरे साथ शामिल होना चाहे, चौथे मिसरे पे हाथ उठा दे, उसकी हाजिरी भी मेरे 12वें इमाम की बारगाह में यकीनन लग जाएगी। वो आए, आके खुदाई के भेद को खोले। वो आए, आके खुदाई के भेद को खोले। मेरा वजूद बदन सब इसी खुमार में है। वो चाहता है कौन? वो अल्लाह। वो चाहता है कि हक के ज़हूर को देखूं, इसीलिए तो खुदा खुद भी इंतजार में है। ओहो भाई, क्या कहने। जी बड़े मेहरबानी, हाथ उठा के हाय दरी जी, बड़ी मेहरबानी, मालिक आपको सलामत रखें। इसीलिए तो खुदा खुद भी इंतजार में है। मालिक आपकी जिंदगी दराज फरमाए जी। अच्छा, जब ज़ाहिरी तौर पे ज़मीन पर नाजिल हुए ना इमाम ज़माना, कौन जी? इमाम ज़माना। इमाम ज़माना का मतलब क्या है? ज़माने का इमाम, यानी आप और मैं इस जिस ज़माने में मौजूद हैं, इस ज़माने के इमाम का नाम है इमाम महदी अलैहिस्सलाम। ठीक है जनाब, आप अपने अल्लाह। अच्छा जी, ज़ाहिरी नज़ूल फरमाया 15 शाबान। मैं जुमला पढ़ूंगा, फिर जनाब के चेहरों की तिलावत करूंगा और मुझे पता चलेगा जनाब का अकीदा इमाम ज़माना के ज़हूर नज़ूल के मुतल्लिक़ क्या है। 14 और 15 शाबान की दरमियानी शब थी, जिसे आप नीमा शाबान के नाम से जानते हैं। सजाद साहब किताब वाला लिखता है कि इमाम हसन अस्करी अपनी फूफी के करीब आए। फरमाया, फूफी अम्मा, आज की रात मैं जुमला पढ़ के चेहरों की ज़ियारत करूंगा। आज की रात हमारे घर क़याम कीजिए, आने वाली सुबह अल्लाह की हुज्जत हमारे घर आने वाली है। जी बड़ी मेहरबानी, थोड़े बंदे बोले हैं, ये पिछले मोहल्ले वाले भी मेहरबानी फरमाएं। फरमाया, फूफी अम्मा, आज की रात हमारे घर क़याम फरमाइए, आने वाली सुबह अल्लाह की हुज्जत हमारे घर आने वाली है। जिस जुमले के लिए वादा कर रहा हूँ वो जुमला पढ़ने लगा हूँ। आने वाली सुबह अल्लाह की हुज्जत हमारे घर आने वाली है। बीबी, इनकी फूफी अम्मा हैरान हो के इमाम अस्करी की जानिब देखा। इमाम अस्करी की जानिब देख के फरमाती हैं, अस्करी बेटा, तू वक्त का इमाम है, तूने ये बात की है तो यकीनन हक है।
तूने ये कहा है कि आने वाली सुबह अल्लाह की हुज्जत आने वाली है, लेकिन मैं कई माह से तुम्हारे घर आ भी रही हूँ, तुम्हारे घर से जा भी रही हूँ, तुम्हारी ज़ौजा से मुलाकात भी कर रही हूँ, उसके पास वक्त भी गुजार रही हूँ, मैं पर्दे में गुजरने लगा हूँ, उसके पास वक्त भी गुजार रही हूँ। हसन अस्करी, तूने कह दिया कि अल्लाह की हुज्जत आने वाली है, शक कोई नहीं, लेकिन मुझे ये बता, मैंने नरजिस में आसारे विलादत तो देखी कोई नहीं। ओहो, बंदे पीछे रह गए यार, अल्लाह जाने क्या हो गया। मैंने नरजिस खातून में आसारे विलादत तो देखी कोई नहीं। अब ये बीबी खामोशी से रात इसी घर में क़याम किया। किताब वाला लिखता है सुबह सादिक का वक्त था, वहाँ से अज़ान फजर होने वाली थी। अज़ान फजर का वक्त हो रहा था कि वहाँ हुजरे में जनाब नरजिस खातून के साथ एक छोटा सा बच्चा है जिसका सर सजदे में है और सजदे में पढ़ता जा रहा है बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहू व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु व अशहदु अन्ना अमीरुल मोमिनीना व इमामुल मुत्तकीना अलीयुन। जिस बंदे को समझ आएगा रैयत इमाम ज़माना यार। अच्छा, अब मंजर क्या बना जी, आदम से लेके खातम तक सारे अंबिया आए हुए हैं, जिब्राइल से लेके इसराफील तक सारे के सारे फरिश्ते आए हुए हैं, जनाबे हव्वा से लेके आसिया तक सारी इज्जतदार मस्तूरात आई हुई हैं। ये सारे के सारे फरिश्ते अल्लाह के मुकर्रब फरिश्ते, अंबिया, इज्जतदार मस्तूरात, मुहद्दिरात इस्मत, इमाम ज़माना की ज़ियारत भी करती जाती हैं, इमाम अस्करी की तरफ जाती हैं, इमाम ज़माना की ज़ियारत भी करती जाती हैं, इमाम हसन अस्करी को सलाम भी करती हैं, मुबारक भी पेश करते हैं। पहले एक नबी आगे बढ़े, फिर दूसरे नबी आगे बढ़े, कभी आदम आ रहे थे, कभी इसराफील आ रहे थे। जिस बंदे को समझ आ रही है यार रैयत इमाम ज़माना, कभी मूसा आ रहे थे, कभी याकूब आ रहे थे, कभी कोई फरिश्ता आ रहा था, कभी मुहद्दिरात इस्मत आ रही थी। किताब वाला लिखता है आते 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 बारी आ गई ईसा नबी की। ना 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 ना, जिस बंदे को बात समझ आ गई है, बारी आ गई ईसा नबी की। ईसा करीब आए, इमाम ज़माना की ज़ियारत की। ज़ियारत करने के बाद गए चलते चलते इमाम हसन अस्करी के पास, दोनों हाथ जोड़े, अल्लाह के नबी ने दोनों हाथ जोड़े, जोड़ के फरमाते हैं इमाम मुबारक हो, अल्लाह ने आपको हसीन तिफल अता किया, अल्लाह ने आपको हसीन तिफल अता किया। तिफल का नाम आया, पंजतन की गैरत की सुर्खी सिमट के हसन अस्करी के चेहरे पर नमूदार हो गई। ना 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 ना, जो बंदा आप बोला उसका मैं शुक्रगुजार। जिस बंदे को ये मुश्किल बात समझ आई उसे मैं सलाम करूंगा। जब जनाब ईसा ने फरमाया ना कि आपको मुबारक हो, अल्लाह ने आपको हसीन तिफल अता किया, इमाम हसन अस्करी ने उस इमाम नबी की जानिब देखा, देख के फरमाते हैं तिफल ना कहना, मोहम्मद का जानशीन है ये। तिफल कहते हैं बच्चे को, यार मुश्किल बात तो है नहीं, फरमाते हैं तिफल ना कहना, मोहम्मद का जानशीन है ये। तिफल ना कहना, मोहम्मद का जानशीन है ये। अगले मिसरे में अगर मैं वो लफ्ज पढ़ूं जो इमाम ज़माना के मुतालिक हर इमाम ने और हर मेरे रसूल ने फरमाए हो, तो फिर दाद देने में भूल नहीं करना। अगर बात अपने से करूं बोलने की जरूरत ही नहीं। इमाम हसन अस्करी ने ईसा नबी की जानिब देखा, देख के फरमाते हैं तिफल ना कहना, मोहम्मद का जानशीन है ये, और इसके हाथ पे नबियों को बैत करनी है। ना 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 ना, अपने पीछे नहीं रहना। इमाम हसन अस्करी फरमाते हैं तिफल ना कहना, मोहम्मद का जानशीन है ये, और इसके हाथ पे नबियों को बैत करनी है। ए इब्ने हजरत मरियम, ये इब्ने ज़हरा है, तुझे कल इसी के पीछे नमाज पढ़नी है। ओहो, अज़मत इमाम ज़माना, हर बंदा हाथ उठा के हाय जी, बड़ी मेहरबानी जी, बहुत शुक्रिया, मालिक आपको सलामत रखें। तुझे कल इसी के पीछे नमाज पढ़नी है। अच्छा, जब नमाज पढ़ाने आएंगे ना मेरे मौला, तो किताब वाला लिखता है इमाम ज़माना के आने का मंजर क्या होगा। इमाम के ज़हूर का ऐलान, देखना मेरी तरफ है जी, इमाम के, मैं आपके ज़माने के इमाम की बात कर रहा हूँ। इमाम के ज़हूर का ऐलान इख्तियार साहब अल्लाह की दो मखलूकात करेंगी। तो जो है मेरी जानिब, बहुत शुक्रिया, तायद के लिए शुक्रिया।
मैंने कहा इमाम ज़माना के ज़हूर का ऐलान अल्लाह की दो मखलूक़ात करेंगी। पहली मखलूक अल्लाह का सूरज, सूरज की किरणें चमक चमक के, जुमला सुनिएगा, सूरज की किरणें चमक चमक के, दमक दमक के कहेंगी शियो मुबारक हो तुम्हारे ज़माने का इमाम आ गया। जी जिंदाबाद, इमाम की रैयत की क्या बात है। पहली महलूक अल्लाह का सूरज, जिसकी किरणें चमक चमक के, दमक दमक के कहेंगी शियो मुबारक हो तुम्हारे ज़माने का इमाम आ गया। सजाद साहब, दूसरी महलूक वो फरिश्ता जो सारे फरिश्तों का सरदार भी है, सुल्तान भी है। लुत्फुल असाफी गुल पैगानी से लेके अलामा तालिब जोहरी साहब ने हर एक ने इस रिवायत को लिखा कि जब इमाम ज़माना ज़हूर फरमाएंगे, पहला ऐलान अल्लाह का सूरज करेगा, दूसरा ऐलान हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम करेंगे। कैसे करेंगे? जब जिब्रील रकू वाले फरिश्तों का रकू छुड़वा के, आपको समझ नहीं आई कितना अहम था ऐलान, अहम है ऐलान ज़हूर इमाम। सजदे वालों को सजदे से उठा के, तस्बीह वालों की तस्बीह रखवा के, जब सारे मलाइका की सफ लेके जमीन पे तशरीफ ला रहे होंगे, देखना मेरी तरफ है, जमीन पे तशरीफ ला रहे होंगे, उस वक्त हुरान जन्नत पूछेंगी, ए सरदारुल मलाइका, ए सुल्तानुल मलाइका, ए उस्तादुल मलाइका, आज फरिश्तों से तस्बीह छुड़वा के, आज फरिश्तों को रुकू से हटा के, आज फरिश्तों को सजदे से उठा के, आज अर्श से फर्श पे जाते क्यों हो? उस वक्त जिब्रील मुस्कुरा के हुरान जन्नत की तरफ देख के कहेगा, आज जमीन पे उसके आने का ऐलान करने जा रहा हूं जिसकी वजह से कयामत रुकी हुई है। ओहो, क्या अज़मत इमाम ज़माना जा जी, बड़ी मेहरबानी, जिसकी वजह से कयामत रुकी हुई है। अच्छा, अब इमाम ज़माना के ज़हूर का ऐलान होगा। हाय, मैं जुमला पढ़ने का मेरा अपना दिल कर रहा है, मैं भी तो रैयत इमाम ज़माना हूँ। मेरे दोस्तों, इमाम ज़माना के आने का ऐलान अल्लाह की हर मखलूक सुनेगी। ये जो दुआए अहद है ना, दुआए अहद, जो हुक्म है कि हर मोमिन मुसलसल 40 रोज़ तक नमाज फजर के बाद इसे पढ़े, इसे पढ़ने का मकसद ही ये है, जुमला कहने लगा हूँ, इसे पढ़ने का मकसद ही ये है कि जो बंदा ये दुआ पढ़ता रहेगा, इमाम ज़माना से अहद करता रहेगा कि इमाम हम तेरे आने पे तेरी नुसरत करेंगे, तेरे आने में तेरे अंसार में शुमार होंगे। आइमा फरमाते हैं जो इमाम ज़माना का इंतज़ार करते 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 मर जाएगा, इमाम ज़माना खुद उसकी लाहत पे आके कहेंगे तू मेरा इंतज़ार करते करते मर गया, आज महदी तेरे इंतजार में खड़ा। ओहो जी, बड़ी मेहरबानी। अच्छा, अब जब इमाम ज़माना ये ऐलान फरमाएंगे ना, तो इमाम ज़माना की आमद का ऐलान अल्लाह की हर मखलूक सुनेगी। बताऊं कौन कौन सी मखलूक सुनेगी? वो बच्चे भी सुनेंगे जो अभी माओं के शिकमों में होंगे। ओहो भाई, वो मुर्दे भी सुनेंगे जो आदम से लेके वक्त ज़हूर तक कब्र की तह में सो रहे होंगे। जब बंदे मोमिन तक ये बात पहुंचेगी, जब बंदा मोमिन समझ जाएगा कि इमाम ज़माना ज़हूर फरमा चुके हैं, बंदा मोमिन सोचेगा मुझे इमाम ज़माना तक जाना चाहिए, मुझे वक्त के इमाम की नुसरत के लिए जाना चाहिए। लेकिन बंदा मोमिन सोचेगा मैं इमाम की नुसरत के लिए जाऊं कैसे? मैं तो रहता हूँ लखुडैर में, जी मैं तो रहता हूँ मुगलपुरा में, मैं तो रहता हूँ शादर्रे में, मैं तो रहता हूँ शेखुपुरा में, मैं तो रहता हूँ मीरपुर में, मैं तो रहता हूँ इस्लामाबाद में। मैं इमाम ज़माना की नुसरत के लिए पहुँचूँ कैसे? इमाम ज़माना तक जाने के लिए मुझे ढेर सारे पैसे चाहिए, पैसों के बाद मुझे पासपोर्ट बनवाना पड़ेगा, पासपोर्ट बनवाने के बाद टिकट लेना पड़ेगा, टिकट